Hello, guys. I hope you are all doing really great today. This is Mandeep, and you're watching the English Family. So, guys, today we will learn about how to write an IELTS pie chart essay. Okay, so first of all, you all have to understand this thing, what is actually a pie chart. Okay, so first of all, just understand this कि pie chart are actually the circular charts that are divided into sectors, or these sectors are also called as pie slices, that are usually representing, or you can say illustrating, the percentages. The size of each pie slice shows the relative quantity of the data it represents, and together these slices they create a full circle. So they are commonly used in the business world as well as in the mass media, and they are much less common in scientific or technical areas. Okay, so as you all know, we have 5 steps which we can use to write a perfect task one. ओके, सो दीज 5 स्टेप्स आर, एज यू ऑल नो, मैंने एक पहले भी इससे पहले वीडियो की थी जिसमें आई हैव टोल्ड यू कि हाउ व्हाट आर द 5 स्टेप्स दैट यू कैन फॉलो व्हेन एवर यू आर अटेम्प्टिंग योर राइटिंग टास्क वन. सो दीज 5 स्टेप्स आर वेरी इजी एंड वेरी इफेक्टिव. अगर आप ये फॉलो करते हैं तो इट विल बी वेरी इजी फॉर यू गाइज टू अटेम्प्ट योर राइटिंग टास्क वन. ओके, सो what are these steps? First is you have to analyze the question. Second is you have to identify the main features. Then you have to write an introduction. After that you have to write an overview, and you have to write 2 detailed paragraphs. So these are the 5 main features, or you can say 5 main steps that you must always do while attempting your writing task one. So moving on to the next step is I have taken a question of a pie chart. उसको मैंने सॉल्व किया है स्टेप बाय स्टेप बाय फॉलोइंग दीज 5 स्टेप्स. उनको स्टेप बाय स्टेप मैंने सॉल्व किया है. आई होप आपको वो स्टेप बाय स्टेप समझ आएगा, एंड आई प्रॉमिस अगर आप इस चीज़ को फॉलो करके करेंगे तो आपके कभी कभी नंबर भी कम नहीं आएंगे. ठीक है, सो अगर आपको कोई कभी भी इस वीडियो में कोई भी चीज़ ऐसी हो जो ना समझ आए या आपको कंफ्यूजिंग लगे, तो डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन. आई विल ट्राई टू सॉल्व योर प्रॉब्लम. ठीक है, सो लेट्स बिगिन. So as you can see on the screens, the question that I put here is the chart below shows the reasons why people travel to work by cycle or by car. So this is the main question, the question that is a question statement. Second is the instruction statement, that where you are given instruction how you have to solve your writing task one. So this the second statement is always fixed, as I've also earlier told you. और जो फर्स्ट स्टेटमेंट होती है इट ऑलवेज चेंजेस. ये आपको सिंपली बताती है कि नीचे जो क्वेश्चन है वो किसके बारे में है. जैसे यहाँ पे जो क्वेश्चन है दैट इज ऑफ पाई चार्ट, उसमें क्या हो रहा है, दे आर शोइंग यू सम रीजंस व्हाई पीपल travel to work by cycle, by bicycle or by car. Okay, as you can see on the screens, this is the question of a pie graph. This is the in the first pie chart you can see the reasons for cycling to work. The reasons are the pie chart, whole pie chart is divided into 5 pie slices, and these 5 pie slices they combine and make a single pie chart. Okay, so the more there are 2 pie slices that are of equal proportion, that is which is representing 30%, that is representing health and fitness, and next 30% is representing the environmental problem, that is less pollution. ठीक है, and now the other three are representing no parking problem, no cost, and faster than driving. So these are the pie slices in which this first pie chart is divided. Next, again, next again in the second pie chart, you are giving the reasons for driving to work. So there are again 5 reasons for driving to work. The first one is of 40%, that is of comfort. Then you have distance to work, then faster than cycling, need to carry things to work, and safer than cycling. So this is the pie chart that you are given, and इसको हम जो हमने पहले 5 स्टेप्स आपको मेंशन किए थे उसको लेके हम स्टेप बाय स्टेप इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे आज. ठीक है, सो
First of all, the first step is you have to analyze the question. It is very important कि आपको ये चीज़, चाहे आपको you are given 20 minutes and बच्चों को लगता है कि भाई हमारे पास बहुत कम टाइम है, 20 minutes हैं, तो हमको अराउंड 150 से above, मतलब अराउंड 160 और 170 वर्ड्स लिखने होते हैं, तो हम we should not waste even a single minute in analyzing the question. हमें फटाफट बस जैसे क्वेश्चन आया स्टूडेंट स्टार्ट राइटिंग द क्वेश्चन. तो उससे क्या होगा कि अगर आप प्लान नहीं करेंगे चीज़ें, आपका कभी भी, आपको एक तो क्वेश्चन कई बार स्टेटमेंट बच्चों को नहीं समझ आती जल्दी जल्दी में, उसकी वजह से क्या होता है कि आप आंसर जो होते हैं वो भी उस हिसाब से गलत लिखते हैं. सो ऑलवेज ट्राई टू फॉलो दीज स्टेप्स. ये आपको, आई प्रॉमिस, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे ये आपके राइटिंग टास्क 1 को अच्छा लिखने में. ठीक है. सो फर्स्ट स्टेप दैट इज एनालाइज द क्वेश्चन. सो यू हैव टू एनालाइज द क्वेश्चन ईजिली कि आपको क्या क्या दिया वो. अब इसमें क्या होता है कि आपको जो फर्स्ट स्टेटमेंट होती है दैट इज अ क्वेश्चन स्टेटमेंट, उसमें भी कुछ वर्ड्स होते हैं जैसे कि मैंने यहाँ पे हाईलाइट भी किया हुआ स्क्रीन पे. जो वर्ड्स हैं, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं कि जो इंपॉर्टेंट नहीं होते, मतलब वो वर्ड्स आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे होते, दैट आर देयर जस्ट फॉर कंप्लीटिंग द सेंटेंस. ठीक है. जैसे फर्स्ट स्टेटमेंट में द एंड बिलो शोज, दीज आर द 3 वर्ड्स जो कि इतने इंपॉर्टेंट नहीं है. अगर आप इनको इग्नोर करते हुए बाकी स्टेटमेंट को एक प्रॉपरली अंडरस्टैंड करते हैं तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होगा. ठीक है. नाउ सेकंड स्टेटमेंट इज दैट आई हैव ऑलवेज टोल्ड माई स्टूडेंट्स कि जब भी ये सेकंड स्टेटमेंट होती है इस पर फोकस ना करें, क्योंकि आपको हमेशा प्रैक्टिस होता है. फ्रॉम द फर्स्ट डे दैट यू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग योर राइटिंग टास्क 1, आपको बताया जाता है कि ये जो सेकंड स्टेटमेंट ये हमेशा फिक्स्ड होती है, और आपको पता होता है कि राइटिंग टास्क 1 जो है आपको किस वे में अटेम्प्ट करना है. तो आपको करना क्या होता है, यू हैव टू सिलेक्ट द मेन फीचर्स एंड यू हैव टू रिपोर्ट दोज मेन फीचर्स एंड मेक कंपैरिजंस वेयर एवर रेलेवेंट. ठीक है. तो आपको इस हिसाब से ऐसे लिखना होता है, ये हमेशा सेम होता है, तो इस पर ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करें एग्जाम वाले दिन. ठीक है. सो every question, as you know, every question consists of 3 things. ठीक है. Sentence 1, that is a brief description of the graphic representation. Sentence 2 is the instructions, and the third one is the graphic representation, जो chart, table, pie chart किसी में भी हो सकती है. ठीक है. So second sentence tells you what you have to do. ठीक है. जो यहाँ सेकंड स्टेप है जहाँ पे इंस्ट्रक्शंस हैं, ये सेंटेंस आपको बताता है कि आपको टास्क में करना क्या है. एंड यू करना क्या होता है, यू हैव टू डू 3 थिंग्स जो कि हमने पहले भी डिस्कस किए हैं. यू हैव टू सेलेक्ट द मेन फीचर्स. मेन फीचर्स हमेशा ध्यान रखिए, मेन फीचर्स पे हमने फोकस करना है, ना कि हर एक छोटी डिटेल पे. अगर आपके पास एक लिमिटेड टाइम पीरियड है, आपके पास एक लिमिटेड वर्ड्स हैं जो जिनमें आपको लिखना होता है, एंड अगर आप उस वर्ड लिमिट या उस टाइम लिमिट को क्रॉस करते हैं तो आप अपने टास्क 2 का टाइम जो होगा, यू विल स्टार्ट कंज्यूमिंग योर टाइम ऑफ टास्क 2 विच इज नॉट गुड फॉर अस. ठीक है. तो हमें जो हमारा डेजिग्नेटेड टाइम होता है ऑफ 20 मिनट्स, कोशिश हमेशा कीजिए उसी में कंप्लीट करने की. और वो कब कंप्लीट होगा, जब आप फोकस करेंगे मेजरली ऑन योर मेन फीचर्स, ना कि हर एक छोटी डिटेल पे. ठीक है. आपको यहाँ पे जो एग्जामिनर है वो आपका मैथमेटिकल एबिलिटीज और आपका जो इतने लंबे इंटरप्रिटेशन जो होती है डाटा की, वो अंडरस्टैंड करने नहीं बैठा. उसको सिर्फ इतना है कि द इंस्ट्रक्शंस दैट आर गिवन टू यू, आपने वो फॉलो की है या नहीं की, और आपने उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए आपका राइटिंग टास्क 1 लिखा है या नहीं लिखा. ठीक है. सो एज the first instruction that is given to you is you have to select the main features, then you have to write about the main features and compare the main features wherever relevant. हर जगह ये भूल जाइए, बड़ी बार बच्चों को कहा जाता है कि अगर आप कंपैरिजन नहीं करेंगे तो आपका टास्क अच्छा नहीं बनेगा, लेकिन कंपैरिजंस वही कीजिए जहाँ पे इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे वहाँ पे कुछ सिमिलैरिटी होगी वहाँ पे. ये नहीं कि हर एक क्वेश्चन में आप कंपैरिजन कर रहे हैं. ठीक है. ऐसा नहीं होता. ठीक है. सो ये मिथ बहुत बड़ा होता है. तो कंपेयर वही कीजिए. इट इज़ नॉट कंपल्सरी टू कंपेयर, बट कंपेयर वेयर द कंपैरिजंस आर रेलेवेंट. जहाँ पे रेलेवेंट होंगे वही बनाए, ना कि हर जगह पे. ठीक है. सो दिस इज योर फर्स्ट स्टेप. सेकेंड स्टेप, यू हैव टू आइडेंटिफाई द मेन फीचर्स. आपको आइडेंटिफाई करने हैं जो मेन फीचर्स हैं, उनको आइडेंटिफाई करना है कि इनमें से मेन फीचर्स हैं कहाँ पर. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. कई बार बच्चे क्या करते हैं कि जो मेन फीचर्स हैं उनको समझ नहीं आता कि इतनी सारी इन्फॉर्मेशन दी है, ऐसे मेन फीचर कौन सा है, इसमें अदर फीचर्स कौन से हैं, इतने कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स कौन से हैं, अनइम्पॉर्टेंट जो हैं कुछ फीचर्स कौन से. उसकी वजह से क्या होता है, जब वो अपना डिस्क्रिप्शन लिखने लगते हैं, BP1 BP2 लिखने लगते हैं, तो उसमें क्या होता है कि उनको
मेन फीचर्स को छोड़ के वो पहले क्या करते हैं, जो दूसरे फीचर्स होते हैं उनको लिखने की कोशिश करते हैं। अब उससे क्या होगा कि आपके पास जो वर्ड्स होंगे वो कम हो जाएंगे, आपके पास जो टाइम लिमिट होगा वो भी कम होगा, जो आपके पास वर्ड्स होंगे वो भी कम होंगे। तो इसलिए क्या होता है, आपका टास्क जो होता है कई बार इनकम्प्लीट हो जाता है या कई बार अच्छी तरह आप अटेम्प्ट नहीं कर पाते। तो हमेशा ध्यान रखिए, जब भी टास्क 1 आपके पास आए तो सबसे पहले तो क्वेश्चन अंडरस्टैंड कीजिए कि क्या कहा गया स्टेटमेंट में। सेकंड चीज, आपको मेन फीचर्स को आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। सो द graphic representation in IELTS pie chart question, this should not be difficult to interpret. Each question has been created to test your language skills and not your mathematics ability. प्लीज़ अंडरस्टैंड दिस। एग्जामिनर को आपको इससे कोई लेना देना नहीं है कि आप मैथमेटिकली कितने ज़्यादा एडवांस हैं या आपको पता उन चीज़ों के बारे में, कितने ज़्यादा नॉलेज है उस चीज़ की, उसको कोई नहीं है। उसको आपकी सिर्फ और सिर्फ लैंग्वेज स्किल्स ही देखनी है, ये हमेशा याद रखिए, ठीक है। सो पाई चार्ट ऑलवेज शोज परसेंटेजेस और प्रोपोर्शंस, ठीक है। ये हमेशा पाई चार्ट में क्या होता है, एक तो हमेशा ध्यान रखिए इसका आइडेंटिफिकेशन जो है बहुत इजी है। ये हमेशा सर्कुलर ग्राफ में आता है, कभी भी ऐसा पाई चार्ट ऐसे रोज एंड कॉलम्स में नहीं आता, इट इज ऑलवेज इन सर्कुलर फॉर्म। सो पाई चार्ट यूजुअली क्या होते हैं, ऑलवेज मोस्टली ये क्या करते हैं, आपके परसेंटेजेस एंड प्रोपोर्शन शो करते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट दे आर एसेंशियली द सेम एज बार ग्राफ एंड लाइन ग्राफ्स इन दैट दे आर अ वे ऑफ दे आर प्रेजेंटिंग द डाटा विजुअली। आपको सिंपली बताया जाता है कि ये डाटा है, इतने इतने में प्रोपोर्शन में डिवाइडेड है। तो ये सिर्फ एक वे है आपको डाटा रिप्रेजेंट करने का। लाइन ग्राफ में भी वैसा ही न्यूमेरिकल डाटा आता है, बार ग्राफ में भी आपको उसी तरह से न्यूमेरिकल डाटा आता है, पाई चार्ट में भी वैसा ही आता है। सिर्फ ये होता है कि उसको जो रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है वो डिफर करता है, ठीक है। सो ऑल यू हैव टू लुक फॉर आर द मेन फीचर्स, दीज विल यूजुअली बी द इजीएस्ट थिंग टू स्पॉट, ठीक है। सो देयर विल बी लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन इन द ग्राफ टू हेल्प यू आइडेंटिफाई देम। सो here are some of the useful questions that are that you can see on your screens. तो अगर आप ये questions को ध्यान में रखते हुए इसको मेन फीचर्स को आइडेंटिफाई करेंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। जब भी आपको लगे कि वो कंफ्यूजन हो रही है, मुझे नहीं समझ आ रहा कि इसमें इम्पोर्टेंट फीचर कौन सा है या इतना अनइम्पोर्टेंट कौन सा है, तो हमेशा ये क्वेश्चंस जो होंगे, जस्ट रिपीट दिस क्वेश्चन इन योर माइंड। आई एम श्योर कि आपको ये क्वेश्चंस जो होंगे हेल्प करेंगे इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई द मेन फीचर्स, ठीक है। सो व्हाट आर दिस क्वेश्चन? सो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट। यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट है क्या? अगर आपके प्रोपोर्शंस में है या आपके वो परसेंटेज में है तो आपको डायरेक्टली समझ आ जाएगा कि इसमें कितने ही कितने परसेंटेज, सबसे ज़्यादा कौन सी परसेंटेज है या सबसे कम कौन सी, आपको वो पता चल जाएगा, ठीक है। व्हाट आर द टाइम पीरियड? टाइम पीरियड क्या है आपको वो देखना पड़ेगा कि कौन से टाइम पीरियड से ये बिलोंग कर रहा है। व्हाट कैन यू लर्न फ्रॉम द टाइटल और एनी लेबल? कोई भी अगर टाइटल है या लेबल है उसमें किस तरह का डाटा रिप्रेजेंट किया गया है, आपको वो टाइटल से बहुत इजीली क्लियर हो जाता है। अगर आपको स्टेटमेंट पढ़ के ना भी समझ आए तो जब भी पाई चार्ट्स के नीचे या कभी भी कोई लाइन ग्राफ, बार ग्राफ, पाई चार्ट, टेबल कुछ भी आता है तो उसके नीचे ना बोल्ड में और हेडिंग में कुछ ना कुछ उसकी एक हेडिंग दी होती है। कई बार वो नीचे वाली तरफ होती है ग्राफ की, कई बार वो अपसाइड होती है, बट आपको वो अगर आप देखेंगे उससे बहुत ईजिली आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा कि इसमें जो इन्फॉर्मेशन है वो किसके बारे में दी गई है, ठीक है। सो नेक्स्ट इज व्हाट इज द मोस्ट ऑब्वियस ट्रेंड? जो आपको लग रहा है कि अगर 2-3 पाई चार्ट्स आए तो इसमें अगर ये पाई स्लाइस जो है अगर वो इट इज डेजिग्नेटेड टू द नंबर 2, तो ये पाई स्लाइस इसमें भी इतना है, नेक्स्ट वाले में ज़्यादा है, नेक्स्ट वाले में उससे ज़्यादा, तो एक कोई ना कोई ऑब्वियस ट्रेंड होगा कि ये कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रही है, ये कंटिन्यूसली डिक्रीज हो रही है, ठीक है। सो नोट those also. Then last question is are there any notable similarities? कि कई बार ऐसा है कि कोई एक पाई स्लाइस ऐसी है जिसमें जो प्रोपोर्शन है, जिसमें जो परसेंटेज है वो कॉन्टिन्यूसली सेम ही है या फिर वो कॉन्टिन्यूसली डिफर है या फिर कुछ और, जो सबसे पहले कम होती है देन वो डबल होती है देन वो कम होती है। तो ऐसा अगर कोई भी आपको लगता है कोई नोटेबल सिमिलैरिटीज हैं तो आप उस चीज़ को ज़रूर मेंशन कर सकते हैं, वो बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी आपको इन आइडेंटिफाइंग योर main features. Okay, so pie charts generally have titles and labels or sometimes a key instead of a segment labels as in our practice question. जैसे कि हमने practice question में है कि आपको दिया गया है, आप बहुत easily देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। So the key explains what each segment of pie chart represents. जैसे हमें छोटी छोटी कीज दी हैं तो यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि कौन सा different colors है, ठीक है। This is your pie chart as you can see it on your screens.
कि जो फर्स्ट पाई चार्ट है इसमें क्या है कि लेबलिंग की हुई है, रीजंस फॉर साइकिलिंग क्या है आपका, जो आपका फर्स्ट ऑफ ऑल जो ये पीच कलर में है ये 30% शो कर रहा है, दैट इज ऑफ हेल्थ एंड फिटनेस, ठीक है। नेक्स्ट वन इज योर येलोइश में जो है आपका इट इज शोइंग 30% ऑफ लेस पॉपुलेशन, देन ग्रीन वाला इज शोइंग 15% इज शोइंग नो पार्किंग प्रॉब्लम्स, the mustard one is of 12% and or 13% it is showing no cost, and last one is your 12% it is that is representing the faster than driving, ठीक है। so this is your first pie chart where the reasons for traveling to work are explained, then the second pie chart is reasons for driving to work, okay। so first जो light blue है that is of 40% that is representing the comfort, then the peach color that is of 21% it is representing distance to work, then the light powdery blue color that is of 14% it is showing faster than cycling, then yellowish one is again 14% that is representing need to carry things to work, and last one is 11% that is safer than cycling. so in these pie slices your whole pie chart is divided, ठीक है। so these pie chart basically are representing two reasons for cycling to work and reasons for driving to work। बहुत easy है, और हमेशा आपको जब भी pie chart आएंगे हमेशा ध्यान रखिए कि pie chart जब भी आते हैं आपको बहुत easy आते हैं, बहुत easily आप interpret कर सकते हैं डाटा, ठीक है। so जो मेन फीचर्स आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, अगर हम इस दो पाई चार्ट्स को देखें तो इनमें जो दो फीचर्स मेन दिख रहे हैं दैट इज द लार्जेस्ट प्रोपोर्शन ऑफ पीपल हु साइकिल दे डू सो फॉर हेल्थ एंड एनवायरमेंटल रीजंस, ठीक है। सो फर्स्ट पाई चार्ट में अगर देखें तो जो मेजरली रीजन जो होंगे वो क्यों कर रहे हैं, रीजन जो है ऑफ फॉर पीपल साइकिलिंग टू वर्क वो क्यों है 30% एंड 30%, तो दे आर बोथ, तो दो ये दोनों रीजन आएंगे इसमें, दैट इज दे आर साइकिलिंग फॉर हेल्थ एंड फिटनेस एज वेल एज फॉर लेस pollution, ठीक है। so this is your first main feature. now second main feature is the highest percentage of people who drive they do so because it's कंफर्टेबल, क्योंकि वो कंफर्टेबल है। जैसे कि हम देख सकते हैं पाई चार्ट में जो 40% है दैट इज अ लाइट ब्लू रीजन, इट इज ऑफ मैक्सिमम प्रोपोर्शन, सबसे बड़ा है इसमें, सबसे ज़्यादा परसेंटेज है। सो दिस इज रिप्रेजेंटिंग द कंफर्ट पार्ट। सो हम कह सकते हैं कि जो दो मेन फीचर्स हैं हमारे कौन कौन से, फर्स्ट वन इज द लार्जेस्ट प्रोपोर्शन जो है पीपल का वो साइकिल क्यों करते हैं, क्योंकि वो हेल्थ और इन्वायरमेंटल रीजंस की वजह से। सेकंड मेन फीचर जो है आपका वो हाईएस्ट परसेंटेज जो है ऑफ पीपल जो कि ड्राइव करते हैं वो क्यों करते हैं, बिकॉज इट इज कंफर्टेबल, ठीक है। So another noticeable feature is that the only reason included in both pie charts that the method is faster shares the almost the same proportion for both modes of transport, ठीक है। तो ये जो मोड जो मेथड ऑफ फास्टर है कि इट इज फास्टर, तो ये दोनों में ऑलमोस्ट सेम ही है, ठीक है। सो वी मे नॉट हैव स्पेस टू कवर दिस फाइनल फीचर बट वी विल नोट इट जस्ट इन केस वी नीड इट टू मेक अप द वर्ड्स, ठीक है। सो अब ये हो गए आपको जनरल ट्रेंड्स जो कि आप सिलेक्ट बहुत इजीली, जैसे आप ग्राफ पढ़ोगे एनालाइज करोगे उसके बाद बहुत इजीली आप ये फीचर्स जो है मेन फीचर्स ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज योर जस्ट अ क्विक रिमाइंडर कि आपको इसके बाद क्या करना है, आपको दीज आर द टू स्टेप्स जो कि प्रिपरेटरी स्टेप होते हैं, ठीक है। इसके बाद आपको आपका राइटिंग टास्क लिखना स्टार्ट करना होगा, ठीक है। अब आपने स्टार्ट कैसे करना है उससे पहले एक क्विक रिमाइंडर कि आपको 4 पैराग्राफ्स में ये अटेम्प्ट करना होता है। सबसे फर्स्ट पैराग्राफ इज ऑफ इंट्रोडक्शन, यू हैव टू मेक एन इंट्रोडक्शन, देन सेकंड पैराग्राफ इज ऑफ ओवरव्यू, थर्ड पैराग्राफ इन विच यू विल गिव डिटेल्स ऑफ द मेन फीचर्स, एंड again in the fourth paragraph that is BP2 main body paragraph second, in that you will also give the details of the remaining main features, okay। so this is the basic format that usually is attempted, ठीक है। so this is the format। now we will start writing with an introduction। अब हम अपना जो प्रॉपर लिखने वाला स्टेप जो है वो शुरू करेंगे, दैट इज द थर्ड स्टेप जहाँ पे आपको इंट्रोडक्शन जो होती है वो लिखनी होती है, ठीक है। सो इन द इंट्रोडक्शन यू शुड सिंपली पैराफ्रेज द क्वेश्चन, दैट इज यू हैव टू राइट द सेम सेंटेंस इन अ डिफरेंट वे विदाउट चेंजिंग इट्स मीनिंग। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको जो स्टेटमेंट होती है, जो ऑलरेडी गिवन स्टेटमेंट है, उसको इस वे में सेंटेंस को चेंज करके लिखना होता है कि उसका सेंटेंस का स्ट्रक्चर चेंज हो बट उसका मीनिंग जो हो वो हमेशा सेम रहे, चाहे वो फॉर्मल और लेटर सेंटेंस जो भी दोनों बनेंगे, द क्वेश्चन सेंटेंस एंड द पैराफ्रेज सेंटेंस, ये हमेशा इन दोनों का मीनिंग सेम होना चाहिए। बाकी आपको सेंटेंस का स्ट्रक्चर जो होता है
डिफर करना होता है बाय पैराफ्रेजिंग. तो आई हैव मेड अ वीडियो, यू कैन पॉज दिस वीडियो एंड उस वीडियो को जाके आप देख सकते हैं. आई विल ट्राई टू पुट द लिंक ऑफ दैट वीडियो इन दिस वीडियो हेयर अगेन, ताकि आप वहाँ पे पैराफ्रेजिंग जो होती है किस तरीके से आप बहुत ईजिली पैराफ्रेज कर सकते हैं राइटिंग टास्क 1 के एज वेल एज राइटिंग टास्क 2 के. कोई भी इंट्रोडक्शन का जब भी आपको पैराफ्रेजिंग का करना पड़ता है ये स्टेटमेंट अटेम्प्ट, तो आप क्या कर सकते हैं, बहुत ईजिली कर सकते हैं. तो आई हैव टोल्ड देयर 3 or 4 ways, different ways of paraphrasing. ठीक है. So now when we start writing introduction, so you can see it on your screens that the question was, the chart below shows the reasons why people travel to work by bicycle or by car. So this was the question. Now we have to paraphrase. So we have paraphrased this question as, the 2 pie charts display the key reasons why people choose to either cycle or drive to work by percentage. ठीक है. So आपको परसेंटेज में दिया गया है 2 पाई चार्ट्स को इस तरीके से डिफर किया गया है कि इसमें दोनों में डिफरेंट रीजंस बताए गए हैं कि क्यों लोग जो हैं साइकिल करते हैं और क्यों लोग जो है ड्राइविंग चूज करते हैं फॉर रीचिंग टू देयर वर्क. ठीक है. नाउ this is your first paragraph, that is of introduction. Now we will come to our 4th step, that is of, you will start writing an overview, that is of paragraph 2. ये आपका paragraph 2 होता है जब भी आप writing task 1 लिखते हैं. तो writing task 1 का first paragraph introduction हो गया, second overview हो गया. इसके बाद we will see the BP1 and BP2, that is the 3rd and the 4th paragraph. इतना हमेशा ध्यान रखें, कभी भी जब भी आपका writing task 1 होता है इसमें कभी भी conclusion नहीं लिखना होता. जो conclusion होता है वो हमने overview में ही ब्रीफली समराइज करके हमें मेन फीचर्स यहाँ पे बताने होते हैं. तो हम सेकंड पैराग्राफ जो होगा उसको ओवरव्यू बनाएंगे, ना कि सेकंड पैराग्राफ में BP1 लिखेंगे. तो हमेशा इस फॉर्मेट को फॉलो करें. सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन लिखें, देन ओवरव्यू लिखें, देन BP1 एंड लास्ट में BP2. एंड आफ्टर राइटिंग BP2 आपका टास्क 1 वहाँ खत्म हो जाना चाहिए. उसके बाद आप कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं लिखेंगे. रिसेंटली एक क्वेश्चन आया था एग्जाम में. वहाँ पे क्या था, यूजुअली मल्टीपल ग्राफ्स में क्या होता है कि आपको ना 2 क्वेश्चन दिए जाते हैं, यूजुअली 2 चीज़ें ग्राफ्स दी जाती हैं. बट रिसेंटली क्या हो, वहाँ 3 ग्राफ्स है. तो स्टूडेंट्स में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन थी कि जो मल्टीपल ग्राफ का क्वेश्चन है जिसमें हमें 3 डिफरेंट ग्राफ्स आए हैं, एक लाइन ग्राफ, बार ग्राफ एंड एक टेबल आया. सो हमने क्या इसके 3 बीपीस बनाने हैं. तो ऐसा कुछ नहीं होता, चाहे जितने मर्जी ग्राफ आ जाएं, आपको हमेशा 2 बीपीस ही बनाने पड़ेंगे. आपको एक लिमिटेड वर्ड्स का दिया होता है, उन्होंने टाइम दिया होता है एंड वर्ड लिमिट भी लिमिटेड होती है. तो आपको उसकी लिमिट के अंदर ही सारा का सारा काम जो है वो लिखना है. ठीक है. सो अब ओवरव्यू में आपने क्या करना है, हमेशा ध्यान रखें, ये बहुत ईजी है. आपको सिंपली क्या है, जो हमने मेन फीचर्स सेकंड स्टेप में एनालाइज किए थे वही मेन फीचर्स हमने ओवरव्यू में अब लिखने हैं. सो मेन फीचर्स हमने क्या क्या 3 मेन फीचर्स देखे थे. सबसे पहला देखा था कि द लार्जेस्ट प्रोपोर्शन ऑफ पीपल हु साइकिल दे डू सो फॉर हेल्थ एंड एनवायरमेंटल रीजंस. एंड सेकंड मेन फीचर वाज the highest percentage of people who drive, they do so because it is comfortable. एंड द थर्ड मेन फीचर जो हमने एक बार लिखा था एंड साइड पे लिख के रख लिया था कि अगर वो हमारे पास वर्ड्स बचे तो हम उसके बारे में भी मेंशन करेंगे. दैट वाज फॉर एन ऑलमोस्ट इक्वल प्रोपोर्शन ऑफ पीपल देयर चूजन मेथड इज द फर्स्टेस्ट. ठीक है. सो नाउ वी विल यूज दिस 2 to 3 these ideas to make 2 to 3 sentences that will be around 40 words and in you will write around 3 to 4 lines in overview. आपने ज़्यादा नहीं लिखनी है, आपने डिटेल्स नहीं देनी है ओवरव्यू में, आपने नंबर्स मेंशन नहीं करने हैं, आपने ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल मतलब ज़्यादा का कोई भी डिटेल नहीं देनी है. आपको कोशिश यही करनी है कि आप जितना कम हो सके उतना लिखें. ठीक है. जितना ऑलमोस्ट अगर आप ओवरव्यू में 4 to 5 लाइन्स भी लिख रहे हैं जिसमें आपने 2 to 3 सेंटेंसेस बनाए हैं, छोटे छोटे शॉर्ट सेंटेंसेस, एंड हर एक सेंटेंस में 2 to 3 डिफरेंट रीजंस जो है आपने मेंशन कर दिए हैं. तो ओवरव्यू बहुत अच्छा लिख लिया आपने. यू कैन स्टार्ट राइटिंग योर BP1. ठीक है. सो अगर हमें एग्जांपल अगर मैं बोलूँ इस क्वेश्चन के जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ पाई चार्ट में, उसमें आप ओवरव्यू में क्या लिख सकते हैं. ओवरऑल इट इज क्वाइट अपेरेंट दैट द लार्जेस्ट प्रोपोर्शन ऑफ पीपल हु साइकिल हैव मेड दिस चॉइस फॉर हेल्थ एंड एनवायरमेंटल रीजंस whilst the prime advantage of driving to work is considered
to be the comfort of traveling by car. ठीक है. Now notably for an almost equal proportion of people their chosen method is the fastest. ठीक है. So उनको लगता है कि जो वो method choose कर रहे हैं वो सबसे ज़्यादा fast है. So now these were the three main features जो कि हमने overview में इसको लिख दिया without giving any detail, major detail or any number. ठीक है. Now you have written a very good overview. अब आप next step पे आ सकते हैं. That is a step 5th, जहाँ पे आपको फर्स्ट मेन बॉडी पैराग्राफ जो है वो लिखना स्टार्ट कर देना है. सो पैराग्राफ 3 एंड पैराग्राफ 4 ऑफ योर IELTS पाई चार्ट essay, they are where you include more detailed information about the number or the data in the graph. ठीक है. In paragraph 3 you should give evidence to support your first key feature. Do not forget to make comparisons wherever relevant. ठीक है. जहाँ पे relevant है हमेशा वहाँ comparisons कीजिए, जहाँ नहीं है वहाँ आप रहने दे सकते हैं. ठीक है. So the first main feature जो हमने वहाँ ऊपर identify किया था, that was the largest proportion of people who cycle, they do so for the health and environmental problems. तो आप पैराग्राफ 3 क्या लिख सकते हैं प्रॉपरली. आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इस पैराग्राफ का, एंड इससे पहले जहाँ पे मैंने पाई चार्ट दिखाए थे दोनों, आप उनका स्क्रीनशॉट लेके इजीली कंपेयर करके लिख सकते हैं कि कैसे मैंने जो डिटेल्स हैं पाई चार्ट की, जो जिसमें फर्स्ट मेन फीचर बताया था उसकी डिटेल्स मैंने कैसे यहाँ पे जो है वो मेंशन किए हैं. ठीक है. जो कि मेन है. मैं आई हैव नॉट मेंशन्ड एवरी सिंगल डिटेल, बट आई हैव ट्राइड कि जितनी हो सके मैं डिटेल्स दूं, क्योंकि हमारे पास वर्ड भी लिमिटेड होते हैं एंड टाइम भी लिमिटेड होता है. ठीक है. सो लेट्स फोकस ऑन द मेन बॉडी पैराग्राफ. दैट इज, on coming to the details, the highest percentage of those who favor cycling say that this is because riding a bicycle to work is healthier than driving. So this is the first sentence that I have written in paragraph 3. Now 30% of them gave this as a reason. The same amount of people, that is 30%, say that they cycle to work because it causes less pollution. सो सेकंड में क्या आ गया, हमने दोनों का बता दिया कि 30% पीपल जो हैं वो बाइसाइकिल करते हैं टू वर्क बिकॉज दे थिंक दैट इट इज़ हेल्थियर देन ड्राइविंग. एंड सेकंड जो सेकंड प्रोपोर्शन पाई स्लाइस है दैट वाज रिप्रेजेंटिंग अगेन 30%. वो क्यों था? बिकॉज दे से दैट दे साइकिल टू वर्क बिकॉज इट कॉजेज लेस पोल्यूशन. ठीक है. नाउ 13% ऑफ पीपल हु साइकिल टू वर्क because it is cheaper than driving. Because 13% क्यों साइकिल करते हैं वर्क में? Because they think that it is cheaper than driving. It is cost effective. Now the last sentence that is written in the main body paragraph 1, that is, surprisingly a similar amount of people said that they cycle to work because it is faster than traveling by car. Okay, so these are the 4 or 5 sentences that I have written in your BP1. Now let's focus on the 6th step, that is you have to write the second detailed paragraph. Now इस paragraph में हमने क्या try करना है, the last the second and the third main feature that we have identified earlier in the this video, उनको ध्यान में रखते हुए आपको उनको use करना है as a reference, and you will write your main body paragraph second. Now what were those main features? The second one was the highest percentage of people who drive to work, they do so because it is comfortable. And जो third feature था आपका वो क्या था? They, for an almost equal proportion of people, their chosen method is the fastest. ठीक है. So now अगर हमने अब इस चीज को पूरे को अगर हमने एक पैराग्राफ में मेंशन करना हो तो how can we can do that? It is in contrast to this, the percentage who prefer to travel by car because it is more comfortable is actually 40%. So 40% people think that they must travel by car because it is more comfortable. The two least important reasons for going to work by car with 14% and with 11% respectively is that people need to carry things to work and that it is safer than cycling to work. So 14% people think that they need to carry things to work, so cycle is not comfortable, they must go to work by driving. Now 11% people, what the thing is, they think that cycling is not at all safer, so if you drive by car to work, so it will be much safer than the cycling. Now finally
16% say they prefer driving because it is faster than cycling. So 16% of people वो क्या सोचते हैं, उनको लगता है कि उनको ड्राइव करना चाहिए because वो क्या है, it is faster than cycling. This contrasts with the cyclists who ride to work because it is faster than driving. तो वहीं पे कुछ proportion जो है लोगों का, वो ये सोचता है कि कुछ साइकिलिस्ट का कि अगर वो if they ride to work तो it will be much faster than driving. तो ये फीचर जो है दोनों पाई चार्ट में आपस में कंट्रास्टिंग है, ठीक है. So this was your fourth paragraph, that is main body paragraph second. Now I have combined all the 4 paragraphs. तो आप यहाँ पे, ताकि आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग हो सके, आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इजीली. सो फर्स्ट पैराग्राफ अगेन यहाँ पे क्या आ गया आपका, इंट्रोडक्शन जो कि 1 से 2 लाइन में है. देन देयर इज योर ओवरव्यू जो कि आपका 3 to 4 लाइन्स और 4.5 लाइन्स में आ जाता है. आफ्टर दैट देयर इज योर BP1 जो कि आपकी 6 to 7 लाइन्स में अप्रॉक्सीमेटली. देन आपका लास्ट पैराग्राफ इज ऑफ BP2 अगेन, जहाँ पे आपका 5 to 6 लाइन्स जो हैं उसमें है, ठीक है. सो दिस इज योर फुल फ्लेश्ड सॉल्व्ड एसे ऑफ अ पाई चार्ट. आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. आई एम रियली होपिंग कि आपको ये ईजी रखा हो, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत करके सिंपल जितना हो सके आई हैव रिसर्च अबाउट इट. जो जितना सिंपल पाई चार्ट ले सकूँ आई हैव टेकन इट एंड उसको सॉल्व करने की कोशिश की है, ताकि आपको बहुत ईजिली समझ आ सके कि किस तरीके से पाई चार्ट्स जो हैं आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है. अगर फिर भी आपको कुछ ना समझ आया हो तो डू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स, ठीक है. आई try my best to give a solution to your problem, ठीक है. So moving on to the next part, that is I have mentioned here a few a few words in the vocabulary that will help to make your pie chart solved essay look more attractive and different from the others, ठीक है. To score high within the limited instructions makes the task a bit challenging. So in the minimum of 150 words you have to repeat numbers and certain words again and again, and it creates lack of interest in the reader. So in order to avoid that, हमने क्या किया, we have to I have given you a proper table जिसमें मैंने normally vocab जो easiest vocab है जो कि आपको help out कर सकती है in solving your pie chart, वो डाली है, ठीक है. So first one is your percentage. So I have divided the table into 2 things. First is percentage and second is your fraction, ठीक है. So अगर आपको 80% दी हुई है, अगर 80% वहाँ दिया है वैल्यू, तो आप उसको किस तरीके से लिख सकते हैं, 4/5, ठीक है. अगर आपको 75% दिया है तो आपको 3/4 वर्ड यूज कर सकते हैं वाइल राइटिंग. अगर आपको 70% दिया है तो 7/10 आप लिख सकते हैं, ठीक है. अगर आपको 65% दिया है तो आप लिख सकते हैं 2/3. अगर आपको 60% दिया है तो आप क्या लिख सकते हैं, 3/5, ठीक है. अगर सिमिलरली अगर आपको 55% दिया है तो आप लिख सकते हैं मोर देन अ हाफ. अगर आपको 50% दिया है तो आप लिख सकते हैं सिंपली हाफ, ठीक है. अगर आपको 45% दिया है तो आप किस तरीके से लिख सकते हैं इसको, मोर देन 2/5, ठीक है. अगर 35% दिया है तो आप कैसे लिख सकते हैं, मोर देन अ थर्ड. अगर 25% दिया है तो आप कैसे लिख सकते हैं, अ क्वार्टर. नाउ अगर आपको 20% दिया है तो आप लिख सकते हैं इसको अ फिफ्थ, ठीक है. नाउ अगर आपको 15% दिया है तो आप इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, लेस देन अ फिफ्थ. अगर आपको 10% दिया है तो आप लिख सकते हैं 10/1. और अगर आपको 5% दिया है तो आप उसको लिख सकते हैं 1/20. सो आप इस तरीके से जो बेसिक परसेंटेजेस में डिवाइडेड है, मैं अब हर एक परसेंटेज का आपको नहीं बता सकती थी, तो मैंने ट्राई किया जितनी परसेंटेजेस में इंक्लूड कर सकूँ उतनी करूँ इस वीडियो में, ठीक है. सो नाउ अगर आप इस तरीके से, अगर ये थोड़ा सा क्रैम्प करने वाली चीज़ होती है, अगर आप ये वर्ड्स को क्रैम्प कर लेते हैं, मेमोराइज कर लेते हैं, तो क्रैम्प भी नहीं कहूँगे, आई वुड यूज़ द वर्ड मेमोराइज, कि अगर आप मेमोराइज कर लेते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा ये इफेक्टिव होगा आपको इन राइटिंग और इन राइटिंग अ गुड राइटिंग टास्क वन ऑफ पाई चार्ट, ठीक है. नाउ
अगर आपको फॉर एग्जाम्पल 77% दिए तो आप कैसे लिख सकते हैं, जस्ट ओवर 3/4 और अप्रोक्सीमेटली 3/4। अगर आपको 49% दी है तो वैसे ही यू कैन राइट जस्ट अंडर अ हाफ और नियर बाय अ हाफ। अगर आपको 32% दी है तो आप लिख सकते हैं ऑलमोस्ट अ थर्ड। अगर वैसे ही आपको 8% दी हो, 79 दी हो, या आपको 47 और 48 दी हो, या आपको 31 33 दी हो, तो आप फिर भी ये सारी चीज़ें जो है यूज़ कर सकते हैं बहुत इजीली यहाँ पे, ठीक है। नाउ इन द लास्ट आई हैव मेड अ टेबल जहाँ पे मेजोरिटी और मिनोरिटी बताया गया है और परसेंटेज बताई गई है। सो अगर आपको परसेंटेज दी जाए अराउंड 75 to 85 तो आप क्या लिख सकते हो उसको, अ वास्ट मेजोरिटी, ठीक है। अगर आपको परसेंटेज दी जाए 65 to 75 तो आप लिख सकते हैं अ सिग्निफिकेंट प्रोपोर्शन, ठीक है। एंड अगर आपको परसेंटेज दी जाए 10 to 15 तो आप कैसे लिख सकते हैं, अ मेजोरिटी। एंड लास्ट में अगर आपको बहुत कम परसेंटेज दी गई है और आपको आप बहुत पॉइंट्स में है, वो बहुत कम पॉइंट्स में, जैसे कि 0.05, तो आप क्या कह सकते हो, अ मिनिमल नंबर। सो दीज आर द वर्ड जो कि आप इजिली यूज कर सकते हैं टू इम्प्रूव योर वोकेबलरी ऑफ पाई चार्ट और ऑफ योर राइटिंग टास्क 1, ठीक है। सो दिस वॉज ऑल फॉर टुडे गाइज। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। आई होप आपको जो जितनी भी इंफॉर्मेशन है ये आपको कहीं ना कहीं, चाहे 10% चाहे 20%, कहीं ना कहीं आपको ये हेल्प करे, ताकि अगली बार जब भी आप पाई चार्ट का क्वेश्चन अटेम्प्ट करें तो आपको ईजी लगे वो अटेम्प्ट कर रहे हैं, ठीक है। सो वी विल मीट विद द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर।